خوش آمدید پیارے ساتھیوں، میں کرتی ہوں جس سے محبت، وہ کرتا ہے میری دوست سے محبت۔ انجانے میں اپنے دوست کو اپنے محبوب سے ملوانے والی ایک لڑکی کی ہے سچ بیانی، مس مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ سعد ایک انتہائی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی امی یاسمین بیگم بھی اچھی خاتون تھی اور ابو آصف علی بھی مہذب شخص تھے۔ سعد کی امی یاسمین بیگم سعد کی شادی اپنی بھانجی سمر سے کروانا چاہتی تھیں، لیکن گھر میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مت چھیڑ ہم اہل جنوں کو۔ سعد روز یونیورسٹی جاتا، اس لڑکی کو مارا مارا ڈھونڈتا پھرتا، یا زیادہ تر کینٹین پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ وہ لڑکی پہلی بار اس کو کینٹین پر نظر آئی تھی۔ اس کی سادگی دیکھ کر سعد اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس کے دوست احمد نے ایک دن پوچھ ہی لیا، یار کیا لڑکی کا چکر ہے کوئی؟ یہ سن کر سعد نے ایک نظر اسے غور سے خالی اور حیران نظروں سے دیکھا اور چائے کے لیے کینٹین والے کو آواز دی۔ احمد نے پھر پوچھا، بتا کون ہے وہ؟ سعد جھنجھلا کر بولا، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یک طرفہ محبت کرتے ہیں جناب؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ یہ سب مجھے کیسے پتہ چلا؟ تو سنو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ محبت کی علامت ہے۔ کوئی بھی پہچان سکتا ہے تم کسی کو پسند کرنے لگے ہو۔ چل اب بتا کون ہے وہ؟ اس بار سعد بڑا پرسکون تھا اور بولا، پتہ نہیں، پہلی بار دیکھا ہے اسے، لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ اس بار حیران ہونے کی باری احمد کی تھی۔ مطلب تم اسے نہیں جانتے، یعنی لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ کیا سوچا ہے پھر؟ یہ بتاؤ دیکھا کہاں ہے اسے؟ احمد سوال پہ سوال کر رہا تھا کیونکہ سعد اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور لڑکی کے بارے میں جانتا بھی کچھ نہیں تھا۔ یہی بھئی کینٹین پر، بتایا تو ہے۔ معصوم سی چائے پیتی مسکراتی، ہاں ایسی ہی ہے وہ بڑبڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب تم اسے کیسے ڈھونڈو گے؟ تم بتاؤ کیا کروں، کیسے ملے گی وہ؟ چلو اٹھو، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ یونی کی ہے نا، دوبارہ نظر آئے تو بول دینا پسند کرتے ہو تم اسے۔ تم جانتے ہو میں یہ سب نہیں بول سکتا، اگر اسے برا لگا تو دیکھنے کا حق بھی کھو دوں گا۔ تو اس کا مطلب تم کبھی اس کے سامنے نہیں آؤ گے، نہ اس کو بتاؤ گے؟ بتاؤں گا جب اس کے بارے میں سب جان جاؤں گا۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ یہی کہ کیسی ہے، مزاج کیا ہے، کیا کرتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے یا نہیں؟ آخری سوال پر احمد نے سر اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے سوال جواب نہیں کرتے سعد۔ تمہیں اس کے ماضی سے کیا لینا دینا؟ تم بس ہاتھ تھامو اس کا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی ہوا تو؟ سعد کو اندر بہت برا محسوس ہوا اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، اللہ نہ کرے۔ ثانیہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسے یاد آیا آج اس نے پریزنٹیشن دینی ہے اور اس کی تیاری بالکل نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے ہبا کو کال کی، یار میری آج پریزنٹیشن ہے اور میری بالکل تیاری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تم فکر نہ کرو، میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں تمہیں سمجھا دوں گی، وہیں کچھ جا کے بول دینا۔ وہ خوبصورت اور نفاست پسند تھی، وہ اپنا ہر کام خود کرتی تھی، کسی کے کام پہ اسے تسلی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے پڑھائی کے معاملے میں اپنے سارے نوٹس خود بنایا کرتی تھی۔ ہبا سے شیئر کرتی تھی، جو سمجھ نہیں آتی ہبا سے سمجھ لیا کرتی۔ کینٹین پر وہ ہبا کے ساتھ گئی اور چائے کا آرڈر دیا، لیکن چائے پیتے اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اگنور کرتے ہوئے چائے ختم کر کے چل پڑی۔ ہبا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا تو 5 منٹ میں وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کینٹین کی طرف جاتے ہوئے کترانے لگی۔ اسے وہاں ایسی نظر کا سامنا کرنا پڑتا تھا جن کو نظر انداز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گھر کے کام کرتے ہوئے اسے وہ لڑکا یاد آیا جس کو اس نے کینٹین پر دیکھا تھا تو مسکرا دیتی۔ اس نے اپنی کالج فرینڈ سمر کو کال کر کے سب بتا دیا۔ سمر اس کی معصومیت کو اچھی طرح جانتی تھی اور بولی، اس کے بعد تم اس کے سامنے نہیں آئی؟
सानिया ने कहा, नहीं, तुम कल कैंटीन जाना और देखना वो आता है या नहीं, लेकिन हाँ, कैंटीन पर अकेली जाओगी, किसी के साथ नहीं। क्यों? ये मोहब्बत बड़े राज की चीज़ है। ये भेद अगर एक पर खुला ना तो समझो सब पर खुल गया। कौन सी मोहब्बत मैडम? मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, सानिया ने एहतजाजन कहा। हाँ जानती हूँ, तुम्हें नहीं है, उसे तो है ना। वो तुम्हें देखकर दिल हार बैठा है, उसका ही कुछ ख्याल कर लो। तुम्हें किसने कहा उसे मुझसे मोहब्बत है? उसकी नज़रों ने। जिस तरह वो तुम्हें देखता है इस तरह से वो तुमसे मोहब्बत तो करता है। तुम्हें क्या पता वो मुझे कैसे देखता है? उस पर समर मुस्कुराई। हाँ तो इमेजिन कर सकती हूँ ना वो कैसे देखता होगा तुम्हें। अब तुम फ़ोन रखो और सोचो तुम्हें क्या करना है। अनजाने में समर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी, सानिया के दिल में साथ की मोहब्बत का बीज बोकर। अगले दिन हिबा को बताए बिना वो कैंटीन पर जा बैठी और चाय पीने लगी। उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जिसको वो लाखों में भी पहचान सकती थी। 2 दिन की नज़रों के मिलाप ने साथ का चेहरा सानिया के दिल पर नक्श कर दिया, मगर ये सब वो साथ को नहीं कह सकती थी। एक लड़की कभी भी किसी से इजहार मोहब्बत करते हुए 100 दफ़ा अपने दिल की छानबीन करती है। वो ये सोच ही रही थी कि किसी ने उसकी टेबल पर हाथ मारकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो अचानक हमले पर डर गई और चाय का कप हाथ से गिर गया। हवास भागता होकर आने वाले को देखने लगी। यास्मीन बेगम परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। अब वो कुछ भी कर ले, साद अपना फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने तो साद और समर का सोच रखा था और इस बात से कैसे बेखबर रही कि उनका बेटा किसी में दिलचस्पी ले रहा है। वो जैसे खुद को कम अक्ली पर कोस रही थी। जिस तरह से साद ने आज उनसे बात की थी इस तरह पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वो उस लड़की को बुरा भला कह रही थी जिसके इश्क में साद गिरफ्तार था, जबकि साद जानता था उसका कोई कसूर भी नहीं। इसीलिए वो बहुत सख्त लहजे में कह गया, शादी होगी तो उसी से होगी। आसिफ अली ने भी समझाया तो उन्हें बेटे की खुशी में खुश होना पड़ा और उन्होंने बेटे को हाँ कह दी। तुम जब कहो हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। साद ने खुशी खुशी ये खबर पहले अहमद को सुनाई। अहमद ने उसे मुबारकबाद दी। वो जानता था आज साद की खुशी का ठिकाना ना होगा, इसलिए उसने जैसे ही अपनी कज़न और दोस्त समर को कॉल की, उसको बताया कि उसे एक लड़की पसंद है, तो ये बात समर के लिए धमाके से कम न थी। वो खड़ी थी, एकदम से बैठ गई, अपने आप को संभालते हुए पूछने लगी, कौन है वो? अरे यार, बहुत मासूम है वो। मैं पूछ रही हूँ क्या करती है वो? साद बहुत खुश था, उसे तंग करने लगा। लो, ये कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है इस वक्त वो घर के काम कर रही होगी। समर चिढ़कर बोलने लगी, साद तुम बता रहे हो या मैं फ़ोन रख दूँ? साद हैरान हुआ, जल्दी संभल गया। अरे अच्छा ना, बताता हूँ। क्या हो गया आज तुम्हें? चलो सुनो, वो मेरे साथ पढ़ती है यूनिवर्सिटी में और मुझे बहुत पसंद है। उसने बहुत को लंबा खींचा तो उसे वो लड़की जहर लगने लगी। उसे इस बात का पता ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बस दोस्ती का बोला था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसे प्रपोज भी कर दूँ। अम्मी से तो मैंने बात कर ली है। समर में अब सुनने की हिम्मत नहीं थी, उसने फ़ोन काट दिया। सानिया ने जब सामने आने वाले को देखा तो संभल गई। जी कहिए, आपको कोई काम? साद भी ज़रा संभल गया। सॉरी, आप शायद डिस्टर्ब हो गई, मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। सानिया को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो खुद बहुत पुरएतमाद और बात को जल्दी ख़त्म करने वाली लड़की थी। जी कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, वो साथ ज़रा अटका। जी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप मुझसे दोस्ती कर लें। देखें, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, ना मैं कोई गलत बात करूँगा। आप बस प्लीज़ रिजेक्ट मत कीजिएगा, प्लीज़। उसने बात जल्दी से मुकम्मल करके जैसे रिक्वेस्ट की। सानिया सोच में पड़ गई, उसे समर की बातें याद आने लगीं। उसने बड़े एतमाद से कहा, क्यों? आप क्यों दोस्ती करना चाहते हैं? इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। साथ जैसे घुटने टेक कर बैठ गया। अच्छा, तो इस तरह आपको और कितनी लड़कियां अच्छी लगती हैं जिनको आप दोस्ती की ऑफर्स कर चुके हैं? साथ इस मर्तबा फिर से चुप हो गया। उसे लगा जैसे वो उसके किरदार पर उंगली उठा रही है। अचानक वो वहाँ से उठा और बिना कुछ कहे चला गया।
समर को कॉल करके बताते हुए वो बहुत हंस रही थी, जैसे बहुत खुश हो। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है सानिया, उसने आहिस्ता से बताया। सानिया खामोश हुई। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो मैं आसानी से किसी के हाथ में नहीं आने वाली। बस इसीलिए उसे भगाने के लिए ये सब सवाल किए। नहीं सानिया, तुमने उसे भगाया नहीं है। तुमने उसे बता दिया कि उसका दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना तुम्हें बुरा लगता है। जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो इंसान इतनी ही जेलसी महसूस करता है और उसके बारे में जानना पसंद करता है। तुमने भी इनडायरेक्टली उसके बारे में पूछ लिया। सानिया खामोशी से सुनती रही। लेकिन यार, उसने कहा नहीं कुछ मुझे कि वो बात करता है लड़कियों से या नहीं, और उठकर चला गया। ऐसा क्यों? देखा तुम, अब उसकी इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उससे मोहब्बत करती हो। तुम अब सोचो, मुझे इजाज़त दो। उसके खामोश रहने पर उसने अल्लाह हाफिज़ कहा और फ़ोन रख दिया। सानिया साद को अपनी क्लास के बाहर देखकर कुछ हैरान और परेशान हुई, लेकिन इग्नोर करके जाने लगी तो वो आगे आ गया। वो रुक गई। अब क्या कहना है आपको? मुझे आपसे बात करनी है, बस 2 मिनट। देखें, मेरी किसी लड़की से कोई अफेयर या कोई दोस्ती नहीं। मुझे बस आप अच्छी लगी, इसीलिए बात करना चाहता हूँ। मोहब्बत करता हूँ आपसे। आखिरकार वो इस बात को सानिया के सामने बोल गया। सानिया सकते में आ गई। उसने इस बात का एकदम से अपने सामने आ जाने का सोचा भी नहीं था। अब की बार खामोशी से जाने की बारी सानिया की थी। हर हकीकत फरेब लगती है जब कोई एतबार खो बैठे। घर पहुंची तो अनजाने नंबर से मैसेज मौसूल हुआ। आप ठीक तो हैं ना? बड़ी तेज़ी से निकली आप यूनिवर्सिटी से। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैसेज पढ़ के उसका दिमाग भग से उड़ गया। इसे मेरा नंबर किसने दिया? आपको मेरा नंबर किसने दिया? उसने फ़ौरन पूछ लिया। आपकी क्लास के एक फ़र्ज से, नाम बता नहीं सकता, सॉरी। आइंदा मुझे मैसेज मत करना। मैसेज करके मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। आप एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोच लें प्लीज़। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर सानिया सोच में डूब गई। उसे अपनी कुछ साल पहले वाली हालत याद आ गई, जब वो किसी के लिए बुरी तरह तड़प रही थी और किसी ने उसकी परवाह नहीं की और छोड़ दिया। एक ऐसा शख्स जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी, शादी करने से इनकार कर दिया जब उसने उसे शादी का बोला था। उसे ये बात आज समझ में आ रही थी कि जिसने शादी करनी होती है वो फजूल के रिलेशनशिप में टाइम पास नहीं करता और ना ही उसने कोई सवाल करना होता है। मोहब्बत करने वाला बस हाथ फैलाता है उसके सामने जो उसका महबूब होता है। चाहे तो महबूब हाथ थाम ले, चाहे तो झटक दे। आज उसे अच्छा लगा कि किसी ने उससे आकर सिर्फ शादी की बात की थी। जब वो ज़्यादा कंफ्यूज होती तो समर से बात करती। समर को कॉल मिलाई। उसने कॉल अटेंड की। सानिया ने पूरी दास्तान सुना डाली। बस देखा, जिस बंदे ने शादी करनी और दिल से चाहता है वो सीधा शादी करता है। उसके लिए वो हर बंदे से लड़ भी सकता है और घर में सबको मना भी लेता है। लड़के के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं। वो जिसको पसंद करता है उसके लिए सबको मना भी लेता है, फिर अपनी मोहब्बत की दलीलें भी लेता है और सबको राज़ी भी कर देता है। समर ने जैसे उस अनजाने लड़के की मोहब्बत को फिर से सच्ची मोहब्बत साबित करने की कोशिश की। हाँ बाबा, लग गई समझ। अच्छा चलो, अब उसका नाम तो बता दो यार, और उसे हाँ बोल दो ताकि मैं तेरी शादी पर आऊँ। हाँ बताती हूँ, साद है उसका नाम। समर धक से रह गई। एक झटके से उसके दिमाग ने काम किया। साद? उसने जैसे कंफर्म करना चाहा। हाँ साद। नहीं, पूरा नाम बताओ। साद अली। अब समर के पास बोलने को कुछ नहीं था। उसी साद की मोहब्बत पर यकीन दिलाया था उसने सानिया को, जिससे वो खुद मोहब्बत करती थी। वो रात समर पर बहुत भारी गुजरी। वो जैसे एक कांटे की तरह निकाल दी गई साद की ज़िंदगी से, और वो खुद थी जिसने खुद ही ये सब कर दिया। किसी दूसरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको किसी की ज़िंदगी से निकालने की। अब उसके हिस्से में रोना लिखा था। अपनी दोस्त को भी नहीं बता सकती थी कि वो भी साद को पसंद करती है। उस रात समर खूब जी भर कर रोई और अगले दिन बड़े एतमाद से सानिया से पूछा, उसे हाँ बोला या नहीं? रही सही उम्मीद ख़त्म हो गई। मैंने हाँ बोल दिया है। कल वो अपने पेरेंट्स को हमारे घर ले आएगा। चलो अच्छा हुआ। मुझे बुलाओगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी, आना है तुमने।
समर ने सोच लिया था वो अपनी दोस्त को खुश देखेगी, किसी की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलेगी। हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ सास से, पर मोहब्बत इतना हक देती है कि कोई इनकार कर सके। हर इंसान का हक है वो अपनी पसंद के बंदे से मोहब्बत करे और शादी कर सके। खुश आमदीद प्यारे साहब।